Good evening, Dr. Radhika, Dr. Sejal, and Miss Lata Gupta. We are waiting for you, Lata Gupta ji. So, first of all, I would like to say thank you everyone for being here today. As we know that Chanke is running a breast cancer awareness drive throughout the month of October, and today is on the Pink Day. We are celebrating Pink Day and spreading awareness regarding the ब्रेस्ट कैंसर। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में अवेयरनेस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले पूरे माह अक्टूबर माह से इस सेशन को रन कर रहे हैं, अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो आज की अवेयरनेस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर राधिका पदनाहट्टी हैं, MBBS DGO and DNB, senior consultant gynecologist and laparoscopic surgeon from Citizens Multi-Speciality Hospital, Hyderabad, Telangana. हमारे साथ डॉक्टर सेजल शाह हैं, होम्योपैथ एंड वेलनेस कोच एंड अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट सेतु हेल्थ केयर क्लिनिक, और आज वो हमें ज्वाइन कर रही हैं दुबई से। हमारे साथ हैं मिस लता गुप्ता, जो कि ब्यूटिशियन है, मोटिवेशनल राइटर है और ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है। आप सभी का हमारे इस आज के अवेयरनेस सेशन में बहुत सारा स्वागत है और हम कोशिश करेंगे कि इन 45 मिनट्स में आपको उचित जानकारी, सही जानकारी दे सके। एज अ चांके चैरिटेबल ट्रस्ट, वी ऑर्गेनाइज दिस सेशन on Pink Day with our two slogan, awareness power and women supporting women. In July, August and September, we have run awareness sessions on healthcare. On July 1st, with Dr. Radhika, we organized vaccination session, COVID vaccination. In September, we have done the nutrition awareness session with Dr. Sejal Shah. In October, throughout October, we are running a breast cancer awareness month. अक्टूबर में ही 10 अक्टूबर को हमने भंवरताल गार्डन जबलपुर में एक सेशन आयोजित किया, जिसमें हमने आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड इशू के साथ साथ वहां उपस्थित महिलाओं से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की। 12 अक्टूबर को हमने सीनियर सिटीजन डे मनाया और ओल्ड एज होम, नर्मदा ओल्ड एज होम है यहाँ पर, वहां पर हम लोगों ने एक अवेयरनेस हेल्थ चेकअप किया। और आज 22 अक्टूबर को पिंक डे में हम ये सेशन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर राधिका है हैदराबाद सिटीजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, डॉक्टर सेजल शाह है दुबई से, और मिस लता गुप्ता है जो आज की हमारी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन की ब्रांड एम्बेसडर। तो आप सभी का बहुत स्वागत है और बिना ज्यादा समय लिए मैं सीधे डॉक्टर राधिका के पास चलती हूँ। डॉक्टर राधिका, जैसे आपने समझा कि लोग इस बारे में बात करने से घबराते हैं, डरते हैं, संकोच करते हैं। जनरली दे डोंट कम फॉरवर्ड टू टॉक, इवन दे आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द साइंस, हाउ कुड दे अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम चेंजेस इन अ फीमेल बॉडी and they have to be aware about that. So please just tell us about the signs of breast cancer. Yeah, good evening, everyone. Shall I share the screen? Yeah, you can share, Dr. Radhika. I think I've started the slideshow. Yeah, fine. So welcome to this breast cancer awareness session on the event of Breast Cancer Awareness Month, which is October. Okay, so I would like to share a few words. You know, awareness is power, as the slogan, as we have told, I think that is very true. So जानकारी सबको फैलाना, स्प्रेड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम थोड़े लोगों को कर सकते हैं, तो एक दूसरे, it's like candle, one candle lighting the other. If you can tell one more person also, I think it will be of great benefit, and that person telling the other, because I'll tell you how much is the problem of breast cancer in India. Okay, so ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में स्पेशली औरत के लिए the most common cancer for women in India. So as you can see, you know, the pink thing here, so 27.7% of all the cancers are due to breast cancers in India,
and one woman is diagnosed with breast cancer in India every 4 minutes, and deaths due to breast cancer can definitely be reduced, especially trying to find out the symptoms and then going to the doctor early. It's especially like a stitching time saves 9. So हम लोग जल्दी डिटेक्ट करके डॉक्टर के पास गए, कुछ स्वेलिंग है वगैरह, तो हमको थोड़े ट्रीटमेंट में हमको क्योर हो जाएगा. Then what is the death? One is, that is the incidence, means कितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर आता है पूरे कैंसर में. अभी कितने लोगों को जिनको कैंसर है, कितने लोगों की मौत होती है. तो it is almost 23.5% estimated of number of deaths in 2018 India, females for all ages. It is, this breast cancer contributes to almost 23.5%, almost like 1 in 4 women, and it happens every 8 minutes, one woman dies of breast cancer. So it's such a huge thing and it's such painful thing. So हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जो एक कैंसर से जिसके वजह से इतने सारे मौत हो रहे हैं और इतना सारा सफरिंग जो लोग झेल रहे हैं, so these cancers can be prevented by, they can be prevented, screened, detected early and treated at an early stage, which can reduce the death rate, from these cancers. So हमको क्या करना है? Screening is a process where it is done for normal people who do not have any symptoms. Okay, even before they get symptoms, it can be detected in a very smaller stage through mammogram, self breast examination or clinical breast examination. ठीक है, तो depending on age we categorize. So after 20 years, all women should be aware about their breast. I mean, what you need to do, how to take care of your breast. So 20 years से start करके once in a month. Breast awareness means knowing, understanding what is the nature of your breast. Is it soft, hard, and knowing what are the changes that it will go through about breastfeeding. ठीक है, तो breast awareness में क्या होता है? You have to examine your breast once in a month, especially after periods. You have to keep examining. I'll tell you what you need to examine. ठीक है, और दूसरी चीज है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर. तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करके ब्रेस्ट ठीक है नहीं है कुछ लम्प से बता देते हैं. ठीक है, so that needs to be done annually or 1 to 3 years. After 40 years, same breast examination and then annual breast examination by the doctor. So annually gynecologist के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाना जरूरी है, तो आपको स्क्रीनिंग के लिए. और दूसरी चीज अभी ऐड होता है एनुअल मैमोग्राफी. शॉर्टली आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एनुअल मैमोग्राफी. तो मैमोग्राफी के बारे में, तो हर साल जब आप हेल्थ चेकअप करते हैं, मैमोग्राफी भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद जो चेंजेस होते हैं हमको मैमोग्राफी में अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर हमको डिटेक्ट हो जाता है. और तो ट्रीटमेंट लाइक जस्ट रिमूविंग ऑफ द लंप या छोटे ट्रीटमेंट में क्यूर होने की चांसेस ज्यादा होती है. और दिस इज फॉर नॉर्मल रिस्क. इंक्रीज रिस्क मतलब क्या है? थोड़े लोगों को फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर होती है, माँ को हो सकती है, सिस्टर्स को हो सकती है, या माँ के सिस्टर्स को हो सकती है. तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जब होती है, रिस्क इंक्रीज हो जाती है. तो इन लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग करके उनको BRCA1 जीन टेस्टिंग करना है. जो इनको ज्यादा है, ये सब लोग इंक्रीज रिस्क में आते हैं. इनको अलॉन्ग विद द अबाउ 3 हम लोग MRI ऑफ ब्रेस्ट, क्योंकि मैमोग्राफी से भी और ज्यादा हमको एडवांटेज मिलता है MRI से. सो ये ब्रेस्ट कैंसर की तरीके है. तो पहला चीज है मैमोग्राफी. तो मैमोग्राफी का एडवांटेज ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इट सेव्स लाइव्स एंड ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज पॉसिबल. ब्रेस्ट कंजर्वेशन मतलब हमको थोड़ा ज्यादा एडवांस स्टेज कैंसर में गए तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, मैस्टेक्टमी बोलते हैं. अर्ली स्टेज में मैमोग्राफी के सहायता से डिटेक्ट करके गए तो फिर सिर्फ लंप निकाल सकते हैं, तो फिर दूसरा ब्रेस्ट टिश्यूज हम सेव कर सकते हैं. और MRI अभी मैं बोली, जिनको रिस्क ज्यादा है, हाई रिस्क पेशेंट्स में MRI का भी रोल रहता है. डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि आपको कब MRI करवाना है. तो हमको क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस है, कब हमको डॉक्टर के पास जाना है, तो किससे हमको पता चलता है कि कैंसर की चांसेस है. So 6 to 7 symptoms are there which one has to keep in mind and keep checking them regularly once in a month, as I told you. Okay, so ये क्या चीज है? lump or a knot, lumpish feel, retraction of the nipple, blood or blood stain nipple discharge, thickening of the skin over an area of the breast and lumps in the armpit. So थोड़े इसके बारे में थोड़े डिटेल्स जानकारी लेंगे. तो इस
पिक्चर में काफी क्लियर है कि जो स्वेलिंग है नॉर्मल सरफेस ऑफ द स्किन से बाहर है, तो फिर जब आप टेस्ट करते हो तो ये फील भी होता है और देखने के लिए भी हमको क्लियरली लग रहा है कि कुछ और चीज है इधर. सो दैट इज द lump in the breast. So the normal breast tissue is soft. So when you touch with your hand, जब आप हाथ के एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको थोड़ा रोलिंग फील जब होता है, आपको थोड़ा नॉट जैसा लगता है, लम्प जैसे लगता है. तो जब कैंसर होते हैं ना, ये लम्प्स आपको सॉफ्ट नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं, लाइक अ वॉलनट फील. सो दैट इज द थिंग. सो दीज कैंसरस जब आपको लम्प फील होता है, कभी कभी हार्ड होके स्टक भी होता है, इजी मूव नहीं होता है. थोड़े नॉन कैंसरस कंडीशन में इजी मूव होता है, लाइक फाइब्रोएडिनोमा. So this is one of the symptoms and sign. और दूसरी चीज है निपल डिस्चार्ज, वेरी क्लियरली शोन इन द पिक्चर. तो निपल से बहुत सारी डिस्चार्जेस हो सकती है, व्हाइट डिस्चार्ज, मिल्की डिस्चार्ज, ग्रीनिश डिस्चार्ज, ये सब चीज हो सकती है. दीज ऑल मे नॉट बी कैंसरस. जब आपको ब्लड निकालती है, ठीक है, सो ब्लड डिस्चार्ज जब होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ेगा. तो अंदर कैंसर की चीज हो सकती है. और दिस इज कॉल्ड निपल रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन मतलब अंदर खींचा हुआ रहता है. थोड़े थोड़े लोगों में इट कैन बी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है. सो ये रिट्रैक्शन क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यूज. तो बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग, कैंसर की जो ट्यूमर होती है तो वो स्टक होने के कारण आपको निपल और टिश्यू अराउंड दैट स्टक होके फिर आपको रिट्रैक्टेड इनवर्ड्स पुल होता है, तो फिर रिट्रैक्टेड लगता है. तो थोड़े लोगों को पहले से भी रहता है, मगर ये रिसेंट डेवलपमेंट हो गया, तो फिर वो नोटिस करके आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है. तो इसके पीछे जब लंप होती है तो फिर वो खींच के ऐसा रिट्रैक्शन होता है. एंड सोर निप्पल इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ठीक है. दैट इज बिकॉज ऑफ द सकिंग एंड द निप्पल, बाइटिंग ऑफ द निप्पल बाय द बेबी. बट ऐसे सिचुएशन जब नहीं है, सिर्फ सोरनेस है, फिर भी एग्जामिनेशन करके इसके अंदर कुछ लंप है क्या देखना बहुत जरूरी है. और अदर थिंग, स्किन थिकनिंग. इधर आप दूसरे ब्रेस्ट को देखे तो जो एरो मार्क्स है, स्किन का चेंजेस काफी है, इधर काफी अलग दिखता है, ऑरेंज की स्किन जैसा दिखता है, तो फिर उसको डिम्पलिंग कहा जाता है, ठीक है. थिकनिंग और डिम्पलिंग है, तो इसको है तो आपको आइडेंटिफाई करके डॉक्टर के पास जाना है. ये होता है क्योंकि जब अंदर ब्रेस्ट का लंप होता है वो फिर टिश्यूज को वो अंदर खींच लेता है, तो इसको ऐसा फील होता है और ऐसा देखता है. तो कभी कभी इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स. और एक चीज है, आर्मपिट्स में भी लंप होने की चांस रहते हैं. आर्मपिट में लंप्स के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं. कभी कभी इन्फेक्शन हो तो भी रहता है. तो अलोंग विद द ब्रेस्ट लंप, आर्मपिट में भी जब लंप्स होता है तो फिर वो थोड़ा एडवांस स्टेज रहता है, तो तभी आपको डॉक्टर के पास जाके फर्दर चेकअप करना बहुत जरूरी है. तो these are screening and the symptoms and signs of cancer. Yeah, I'm going to just wind up to reduce the risk of cancer. हमको क्या करना है, very just basic headlines. So stay away from tobacco, maintain healthy weight, get moving with regular physical activity, eat healthy with plenty of fruits and vegetables, avoid excessive alcohol, know yourself, family history, risks of cancers in the family, have regular checkups and cancer screening tests. So this is to summarize, breast cancer awareness month में ये सारी चीज हमको check your breast and check for all these symptoms. Let's work together to fight breast cancer. Let us support each other and help in fighting. And thank you. Thank you, Dr. Radhika.